Hi guys, very good evening to all of you. We are going to speak about AMI, Associated Member of Institute of Engineering, that is familiar with the Institution of Engineers India. Right now, we are facing the exam schedules also since 1.5 years. I don't know what the IAI is doing. They don't have a proper plan to conduct the exam, even for the certification, even for the validations. We are suffering for these things since 2013 for the validation and all. But my concern is whatever the student who is belongs to mechanical and section B, mechanical section B, and who is suffering for the syllabus of some toughest subject like thermodynamics, strength of material and all. I am the also student of AMI section B mechanical, and I'm also working student. The problem is for the working student how to utilize the time. He has very good knowledge. He is smart. Everybody has a different talent, but the problem is right now how to plan, how to think about the subjects and how to utilize the time. See, I have also same schedule, but we need to clear at least. We have to plan three subjects in one semester, and every 6 months we have exams, summer and winter. So we need to go with the three subjects, or we need to go with four subject in first semester. If you have time, right now the corona is ongoing, so we have a lot of time to study because there is a lockdown and all. So you cannot move from your home. So you should stay over there and you should study. So if you are going to plan one subject in 1 month, you will finalize with revision in 6 months three subject easily, or four subject. It depends on you, whatever your talent, whatever your time is there. So I have some issues with this, and I need to discuss with you. We are not going to teach each other. We are sharing only the knowledge what we have right now. We all are the engineering student, and we all are mature, not a kid. So we need to understand the things. But this is not a normal BTech because we don't have a guideline, we don't have teachers, we didn't have a actual book. So you should go and read this book, and you can easily crack the exam. There is only syllabus available, and you need to choose the book, and you should prepare whatever your syllabus is there. You have to study, and you should clear your exams. But even for the exams, we have a three groups, A, B, and C. So even some of the subjects has only A and B syllabus. Syllabus C is not available. So we need to study by a conceptual mode, not only just read the book and ratification and all. So we need to feel the subject. You understand feeling? We need to feel the subject. We need to feel the topics, and we need to develop the concept. So I am going to share with you a knowledge about the thermodynamics. Even I already finalized my two subjects. Third subject is ongoing. So I need your cooperation. I need your suggestions. Whatever I am going to share with you, if you are going to like, okay, you can appreciate, or you have a different knowledge about the same topics, you can share with me. It is very useful for me also. So we all are engineers, and we need to support each other. So I am going to start this thermodynamics subjects, which are very toughest subject in the engineering field. So I already prepared the notes and all for each and every modules and each and every subjects with the help of different books. So you don't need to prepare. You don't need other subjects and all. I have a good notes. I will share with you, and you should only read my notes. You should also read some good writer books, and you should compare these things with the topics whatever available in my notes and whatever available in the different books. And you should make good notes for you. Even you can share your notes with me. But right now I have a good notes. I have a good uh, a good uh, good written skills, and I will share with you these all things.
So let's start today the thermodynamics lecture 1, and this is the first lecture I'm going to share with you right now. This AMI Mechanical Engineering Thermodynamics lecture 1, and I have a plan to start the strength of material also. This two subject is very vast, so I need to share with you because I already studied for different books, and not only theories. I am focusing on the numericals also, because the numericals part is only to help you to develop the concept. Okay, so thank you so much for being a part of AMI family, एंड बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ मुझे नॉलेज शेयर करके. The time zone is what for the working student. I don't know what is your working time, but you can easily decide if you are going to watch my video in night time, or you can study in night time. Suppose 8 to 12, 8 to 12 night, 8 to 12 p.m. night you are going to study. So you have 4 hours, 4 hours. So 8 to 10 one subject, it is thermodynamics or SOM, and 10 to 12 other subject, second subject you can say. So you should study every day this, and the next day if you are going to the office, or if you are going to field work, just imagine, we are only blaming ourselves, we don't have time, but we have a time. Only the way we need to find how to utilize our time. If you are some working in refinery and power plant and other fields, you are not going to do any work with your hand. You have some groups, you have a foreman, you have a supervisor, you have some group technicians available. You should plan one day before what you are going to perform tomorrow, and tomorrow early morning just go to site and instruct them, this is the assignment, and you should be finalized today. And every site has a rest shelter available. You should be available at site. Just bring your notes, sit in the shelter, and what you have studied in the last night, just revised over there. It will take only 1 hour to revise it, one subject. And during lunch time also, you have a lunch time for 1 hour, only take 10 minutes to finalize your lunch, and after that you can study other subject. So you have 2 and 3 hours every day for site also. You can utilize your time at the site also, and you can finalize your revision part in the next day daytime. This is very important for you guys. I am doing the same. Even I am taking for suppose my duty time is 7 to 4:30. So what I am doing from 8 o'clock, suppose if I will go to site, I just plan each and everything what we are going to perform. Actually I am a pre-commissioning engineer, so I don't know what is, only I know about the entry time, the morning time I am going to office, but for leaving time I don't know. It will take time because I am performing the pre-commissioning activity, and it is taking too much time to finalize the test and all. So in 8 hours I have taken from there 3 or 3.5 hours, like that every day. I am utilizing my time at site, and I finalize whatever I have studied in the last night. The same thing I am sharing with you. Right now I am not available in India. I am out of India, and the same result what I have done in the section A exam, only one attempt I cleared all 4 subjects. That is the reason I need to share with you these things. Since 6 months I am preparing for this exam, section B, but until now I didn't conduct the exam because of Mr. Corona. Right now this is the issue. Right now we are facing too much issues. So maybe this year we will complete this all um, 4 subject or 3 subject, whatever you have a plan, just do it and just feel it, the subject. If you are going to feel the subject, if you love the subject is return it back to you, and it is fully memorized in your mind. So please cooperate with me, and we will share each other. We are engineering student, we are not a teacher, we are not a professor, we are just a friend, and we are engineering family. Just do it. So let's start today.
we have a thermodynamics introduction. I don't know how I'll start because this thermodynamics introduction is very easy. I cannot go and I will tell you what is thermodynamics and what is all, but as per the AMI syllabus, and this is very important, note that as per the AMI syllabus, I make a note for each and every topic. It is very clear. You can easily understand what I have written. This is very important for you. You cannot go and make this notes again and all. Just pause the video, note it down whatever written in my notes, and if you have a doubt, just tell me. This is my doubt in the comment box. I will finalize your each and every doubt. Okay, so let's start. We have today thermodynamics. What is thermodynamics? You know very well. Thermodynamics. Dynamics. See guys, you know thermo means thermo means heat, and dynamis means power. So you can say it is a combination of heat and power. And what is heat? It is the transfer of kinetic energy from one medium to another. You understand what I am saying? Heat is the form of kinetic energy. ये एक फॉर्म से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होता है, इसको हम हीट बोलते हैं. व्हाट इज़ पावर? पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर. यानी काम करने की क्षमता को हम पावर बोलते हैं. इवन एवरी ह्यूमन हैज़ अ डिफरेंट पावर, so you cannot say the power is for all the humans is same. So you understand this heat and power means काम करने की क्षमता, जिसे हम पावर कहते हैं. हीट क्या है? हीट जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, और ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होता है, इसे हम हीट कहते हैं. ठीक है, आपको ये मैं वर्बली बता रहा हूँ, बट मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा और आप पाउज करके वो नोट्स अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना. आप अपना अच्छे तरह से जैसे भी आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप नोट्स बना लेना. अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की. व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली? व्हाट इज़ द डेफिनेशन? थर्मोडायनेमिक्स इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. What is physical properties? Solid, liquid and gas. ये जो physical properties है, physical properties a value is measurable. आप physical properties के value को measure कर सकते हैं. So you can say like this: thermodynamics is the science of energy interaction and its effects on physical properties of matter. मतलब thermodynamics जो है वो energy interaction करता है, और जो इसका इफ़ेक्ट है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के ऊपर आप देख सकते हैं. सिंपल लैंग्वेज में, और ये बहुत इजी है इसको समझना. आप मेरे नोट्स को एक बार पढ़ लोगे, आपको अच्छे से पूरा फील आ जाएगा. एकदम लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, और हमें सीखना है बॉस. हमें कोई प्रोफेसर या टीचर नहीं बनना है. वी आर हेयर टू शेयर द नॉलेज ओनली. थर्मोडायनेमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ थ्री E's. Okay, first E, energy. Second E, entropy. And third E is equilibrium, or you can say thermal equilibrium. Okay, so thermodynamics के अंदर हम ये तीन E's के बारे में पढ़ेंगे. पहला एनर्जी, एंट्रोपी एंड तीसरा इक्विलिब्रियम. अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मल इक्विलिब्रियम.
तीनों के कम्बिनेशन को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ भाई? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब उस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे, जो मैकेनिकल फोर्सेस लग रहे हैं, उसका सम ज़ीरो हो जाएगा, या जो मोमेंट लग रहे होंगे उसका सम ज़ीरो हो जाएगा। उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होगा थ्रू आउट द मैटर, थ्रू आउट द बॉडी यू कैन से। और थर्मल इक्विलिब्रियम, जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का जो सीन होगा वो थ्रू आउट द बॉडी सेम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में अप्रोचेस की। वी हैव टू अप्रोचेस। थर्मोडायनेमिक्स हैज़ टू अप्रोचेस। फर्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक approach, and second is macroscopic approach. अब ये जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मैटर। और आप कह सकते हैं व्हेन वी स्टडी द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच देन विल गेट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर आप मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं, उसके इंटरनल एनर्जीज़ के बारे में जानते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी रोटेशनल एनर्जी, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, हर एक चीज़ जो होगी वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल के बारे में होगी। मतलब एकदम डीपली अंदर घुसना पड़ेगा आपको, वो फील लेना पड़ेगा मॉलिक्यूल के बारे में। और दूसरा होता है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, थोड़ा सा बड़ा, यानी मॉलिकुलर लेवल पे नहीं पढ़ेंगे भाई, उसको थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जब आप स्टडी करते हो तो उस सब्जेक्ट को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। और जब मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो इसमें हम मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी नहीं करते हैं, हम मॉलिक्यूल से थोड़ा ऊपर हट के थोड़ा एडवांस लेवल पे स्टडी करते हैं। आप समझ रहे हैं बात? तो इसमें जब इस सब्जेक्ट को आप डील करते हो, जब आप इसको पढ़ते हो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के ऊपर, तो जो आपको सब्जेक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। समझ रहे हैं आप? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? सो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन ए स्पेस ऑन विच आवर स्टडीज फोकस। मतलब ये आपका एक सिस्टम है, ओके। अब ये जो सिस्टम है मैटर का हो सकता है, ओके। तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, अब आप इसके ऊपर अपनी स्टडी को फोकस कर रहे हो, तो इस क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप एज अ सिस्टम कंसीडर कर लो कि हमको बस इतने ही एरिया में स्टडी करनी है। और ये जो आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा ये एज अ सिस्टम आपको काउंट करना है। और अ रीज़न इन स्पेस ऑन विच आवर स्टडी इज़ फोकस्ड। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये सिस्टम पे नहीं करना, इतना छोटे से अमाउंट पे हमको नहीं करना है स्टडी, हमें बड़े अमाउंट पे करना है, सपोज़ स्पेस पे करना है। तो आप एक स्पेस में एक रीज़न सेलेक्ट करो और उस रीज़न पे आपको स्टडी करनी है, ओके। तो इसको आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन अ स्पेस ऑन विच आवर स्टडी इज़ फोकस्ड। आपको समझ आ रहा होगा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें आप सबको पता ही होगा ये सब कुछ, तो इसमें इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब आपको पूछने वाला भी नहीं है AMI, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड अलग है। और ये सब नहीं जाएगा वो पूछने के व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ पावर। ये सब इंट्रोडक्शन है, बट कंसेप्ट जो बिल्ट होता है ना वो छोटी छोटी चीज़ों से होती है। अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा तो आपका कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। तो आगे हम लोग इन चीज़ों पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये तो बस फील लेने के लिए मैं बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता रहेगी तो आप और अच्छे से इसको इस सब्जेक्ट को अच्छे से कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो और ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको। दिस इज़ द सिंपल थिंग्स।
अब बात करते हैं हम लोग सिस्टम की. व्हाट इज सिस्टम? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैटर, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैटर दैट इज़ बीइंग स्टडीड. सिस्टम किसे कहते हैं? अब एक छोटा सा आपने कलेक्शन ऑफ मैटर लिया जिस पे आपकी स्टडी फोकस है. तो सपोज़ कीजिए कि ये आपका मैटर है, जिसे मैंने ऊपर वाले जो मैंने फिगर बनाया था उसमें मैंने सिस्टम काउंट किया था. अभी ये मैटर के ऊपर आपकी स्टडी फोकस करनी है, तो आप इसको, इस पूरे रीज़न को आप सिस्टम ले सकते हो. तो ये हो गया सिस्टम. और एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, यानी ये वाली चीज़ जो है, सपोज़ ये आपने सिस्टम लिया, सो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, इसको हम बोलेंगे सराउंडिंग, सराउंडिंग बोलेंगे. ओके. और इसको बोलेंगे हम सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री. तो ये सिस्टम हो गया. सिस्टम के बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो सराउंडिंग हो गई. और ये वाला जो आपको दिख रहा है लाइन, इसको हम सिस्टम बाउंड्री बोलेंगे. ओके. सो ये आपके सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें थे वो मैंने आपको बता दी है. अब हम बात करते हैं कंट्रोल मास और कंट्रोल वॉल्यूम की. कंट्रोल मास क्या होता है? व्हाट इज़ कंट्रोल मास? अ थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर नोन एज कंट्रोल मास. मतलब जब हम किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर की, मतलब छोटा सा है, आपको पता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर की जो हम स्टडी करते हैं, तो हम उसको कंट्रोल मास में, कंट्रोल मास, मैटर इज़ व्हाट, मैटर इज़, व्हाट इज़ मैटर? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ मैटर, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर आप बोलें, या फिर आप उसको कंट्रोल मास बोलें, या फिक्स्ड मास बोलें. मतलब छोटी सी चीज़ छोटे अमाउंट में हो, जब आप उसको एज अ सिस्टम काउंट कर रहे हैं, जहाँ पर मास आपका फिक्स्ड होगा, मास मूव नहीं करेगा, वो फिक्स हो गया आपका, तो उसको हम कंट्रोल मास बोलेंगे. ऐसे थर्मोडायनेमिक एनालिसिस जिसमें आप एक ऐसे मैटर को स्टडी कर रहे हो जिसका अमाउंट फिक्स है, जिसका मास का अमाउंट फिक्स्ड है, मास मूव नहीं कर रहा है, मास अंदर में फिक्स है. एक बार जो आपने डाला, जो पोर किया, वो फिक्स हो गया, वो मूव नहीं कर सकता, वो पूरा क्लोज है चारों साइड से, तो उसको हम बोलेंगे कंट्रोल मास. कंट्रोल मास मीन्स मास इज़ फिक्स्ड. ये पॉइंट आप हमेशा के लिए याद कर लें. कंट्रोल मास मीन्स मास जो है वो आपका फिक्स हो गया, मास अब मूव नहीं करेगा, ये फिक्स हो गया. इसको आप सिस्टम बाउंड्री के बाहर नहीं लेके जा सकते, और ना ही आप बाउंड्री के बाहर से कोई चीज़ अंदर डाल सकते हैं. इसको हम कंट्रोल मास बोलेंगे. सो कंट्रोल मास इज़ नथिंग बट अ क्लोज सिस्टम ऑल्सो. क्लोज सिस्टम में क्या होता है, हमारा मास फिक्स होता है, और हम ना अंदर से बाहर मास को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना बाहर से अंदर की तरफ. अब बात करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम की. इट इज़ अ वॉल्यूम इन ए स्पेस ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर एनालिसिस. दोनों अप्रोच सेम ही है, बट जब हम छोटे अमाउंट पे किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो हम उसको कंट्रोल मास में लेते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे एज अ क्लोज सिस्टम लेते हैं. बस कंट्रोल जो वॉल्यूम है, जो हम छोटे अमाउंट पे नहीं, थोड़ा उससे बड़े अमाउंट पे करना चाह रहे हैं स्टडी, अपने स्टडी को फोकस करना चाह रहे हैं, तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम कंट्रोल वॉल्यूम को लें. सो इट इज़ अ वॉल्यूम इन स्पेस ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर एनालिसिस. अब ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, सपोज आपने एक पिस्टन सिलेंडर ले लिया, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है विदाउट वाल्व. आपने इसमें कोई चीज़ पोर कर दी. ओके. तो अब इसमें क्या है, मास जो है इसका फिक्स हो गया. अब यहाँ पे आप इसको एज अ कंट्रोल वॉल्यूम ले सकते हैं. ये पूरे एरिया को आप स्टडी कर रहे हो, पूरे एरिया को स्टडी कर रहे हो, तो हम इसको एज अ कंट्रोल वॉल्यूम लेंगे. और ये जो कंट्रोल वॉल्यूम की जो सरफेस होती है ना, जिससे कंट्रोल वॉल्यूम बना होता है, जिस सरफेसेस से मिलकर बना होता है, उसे हम कंट्रोल सरफेसेस बोलते हैं. सपोज़ आप एक क्यूब लेते हैं और इस पूरे क्यूब को आप एज अ कंट्रोल वॉल्यूम आप स्टडी करना चाहते हो, तो ये जितने भी सरफेसेस हैं ना, ये सब कंट्रोल सरफेसेस होते हैं. कंट्रोल सरफेसेस बोलते हैं इसको. और ये फिक्स भी हो सकते हैं और मूवेबल भी हो सकते हैं. सरफेस में बी फिक्स्ड, मूविंग और रोटेटिंग.
सो जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो हमेशा फोकस करता है रीज़न के ऊपर, यानी ये जो रीज़न आपने लिया ना, यहाँ से यहाँ आप चाह रहे हैं इसको स्टडी करना, तो ये पूरा रीज़न आपको एज अ कंट्रोल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन दोस्त, और अब आपको मैं अपने नोट्स शेयर करता हूँ। ये देखें, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है थर्मोडायनेमिक्स का, और आप ये नोट्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AMI। मैंने काफ़ी मेहनत की इस नोट्स को बनाने के लिए, और इसमें आपको आगे चलकर बेहतरीन आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं जो आपके स्टडी में बहुत ज़्यादा चार चांद लगाने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे नोट्स को पढ़ कर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और फिर मैं इसको आगे अपने पास जो मेरे पास मैंने जो अपने नोट्स अपने नॉलेजेस हैं वो आपसे शेयर करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे नॉलेज लेना और अपने नॉलेज को शेयर करना। और एक चीज़ गाइस, हम सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, और हमें पता है सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशंस जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, वो हेजिटेट करते हैं बोलने के लिए अपनी बातें, अपने इवन मैनेजर्स को भी जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमेशा स्टडी टाइम में जो भी लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स हो या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद एवरी लेक्चर में मैं आपको 15 वर्ड्स दूंगा, वोकैबुलरी आपको स्टॉक करनी है, और इंशाल्लाह आगे हम लोग सब मिलकर इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और हम लोग सब कहीं ना कहीं ये ख्वाब देखते हैं कि हमारा जो स्टडी है वो बहुत बेहतर होगा, और हम आईलेट्स वगैरह निकालें और अच्छी कंट्री में सेट हो जाएं। तो ये सब चीज़ आपके कम्युनिकेशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने का। और ये जो टाइमिंग मैंने बताया है, रियली आप इस पे फोकस करें। जो मैंने आपको टाइमिंग, आप जो भी वर्किंग है अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से 2-2.5 घंटे आप दिन में निकाल लो, और बाकी के आप 4 घंटे फिक्स कर लो नाइट के लिए। 4 घंटे आप नाइट में पढ़ोगे तो आपको डे में सिर्फ रिवीज़न करना है, ओनली रिवीज़न। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि AMI वालों के लिए ही है, जो भी बीटेक स्टूडेंट है जो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जिनकी वीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू और गेट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाई है। बहुत अच्छा है नोट्स हमारा, और ये सब कुछ आपको फ्री में ही मिल रहा है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम अपने नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। और आपका नॉलेज, आपके पास अगर कोई अच्छा कंसेप्ट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस फैमिली में आने के लिए, और आपका कमेंट हमें बताएगा कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करें या नहीं करें। हम भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हैं, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया और आप एक इंजीनियर हो गए। जब तक आप कुछ इन्वेंट नहीं करते तब तक आप इंजीनियर नहीं। तो हम सब जो है मिलकर सिलेबस को कवर करेंगे, और पूरा मैकेनिकल कवर करेंगे, सिर्फ ओनली थर्मोडायनेमिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं। थैंक यू गाइस, दुआ में याद रखिएगा, और आपका बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच। अपना अपना ख्याल रखिए, और अपनी टाइमिंग भी शेयर कीजिएगा, क्या आपका स्टडी टाइमिंग है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। फील कीजिएगा सब्जेक्ट्स को, बहुत मज़ा आने वाला है। जहाँ भी डाउट हो बताइएगा मुझे, ओके। जिस भी टॉपिक में डाउट हो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर, बाय।